Audit is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form, when such an examination is conducted with the view to express an opinion thereon. So basically, it is an independent examination of financial information of an entity, whether it's profit oriented or not, irrespective of size or legal form, with the view to express an opinion thereon. So the main keywords: independent examination, financial information of entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal firm, with the view to express an opinion thereon. Now, what is SA 200? SA 200 is overall objective of independent auditor and conduct of audit in accordance with standards of auditing. Okay, so basically OIA CASA, overall objective of independent auditor and conduct of audit as per standards on auditing. So to obtain reasonable assurance that financial statements are prepared are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and financial statements are prepared as per financial reporting framework. These two things that auditor has to make sure, and they have to provide reasonable assurance, and same thing he has to communicate on the audit report as per standards on auditing. तो इफ़ आई टॉक मतलब बेसिकली व्यू क्या है, उसको काम क्या करना है, दो काम चेक करने हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है. मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स किस वजह से हो सकते हैं, फ्रॉड और एरर की वजह से हो सकते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं. अगर ये दोनों चीज़ में वो नहीं मतलब उसको लग रहा है कि मटेरियल स्टेटमेंट है और उन्होंने गलत तरीका यूज़ कर रखा है बनाने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तब वो उस चीज़ को कम्युनिकेट करेगा. अगर सही है तो भी कम्युनिकेट करेगा एज पर एस 700 वी नो फॉर्मिंग एन ओपिनियन on financial statements. Now, what is reasonable assurance? Reasonable assurance is high but not absolute level of assurance. Basically, it's like कि we are giving you कि हाँ ठीक है financial statement, but we can't give you guarantee कि पूरा ठीक ही होगा. तो high but not absolute level of assurance. Reasonable assurance के लिए आप क्या करते हो, ऑडिट प्रोसीजर्स करते हो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आते हैं, फिर कंक्लूजन फ्रेम करते हो, देन यू गिव ओपिनियन. तो दिस इज़ हाउ ऑडिट प्रोसी मतलब ऑडिट चलता है. कैसे प्रोसीजर्स करोगे, ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे. ऑडिट एविडेंसेस कैसे मिलेंगे, सफिशिएंट होने चाहिए एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए, एंड देन यू फॉर्म अ कंक्लूजन एंड देन यू फ्रेम ओपिनियन ओवर दिस. नाउ वी गो, what do you mean by misstatement? Like we read na SA 200, overall objective of independent auditor ki to provide reasonable assurance about whether financial statements are free from material misstatement. Now what is misstatement? Whenever there is a difference between amount, classification, presentation, disclosure of reported financial statement and required financial statements as per applicable financial reporting framework, whether due to fraud or error, इसको हम क्या कहते हैं, misstatement कहते हैं. Now व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट? 6 पॉइंट से याद करते हैं. सबसे पहले हमें डेफिशिएंसीज पता चलती है. पॉइंट आउट डेफिशिएंसी, ऑडिटर जाएगा इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मतलब रोमम करने टाइम में उसको पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स में ये डेफिशिएंसीज है, तो पॉइंट आउट डेफिशिएंसी, उससे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड और एरर के पता चलेंगे, तो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर. थर्ड चीज़, अब वो फ्रॉड वर्ड निकल गए, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन बन गया. अब वो गलती करेगा कौन, चेक एम्प्लॉयज़ करेंगे, तो वी कैन कीप अ चेक ऑन एम्प्लॉयज़ एज वेल, तो मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हो गए तो इससे क्या किस किस को बेनिफिट होगा, थिंक अबाउट. सबसे पहले शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हो जाएगा कि उसके सेफ गार्ड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट. थर्ड, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, नेट बेनिफिट मतलब पूरा प्रॉफिट अच्छे से कैलकुलेशन में. एंड फिर क्रेडिटर्स को भी फ़ायदा होगा कि उनको क्रेडिट करना है या नहीं करना, उनके क्रेडिट डिसीजंस पे ये बेनिफिट करेगा. These are the benefits. एक बार मैं रिपीट करती हूँ. पॉइंट ऑफ डेफिशिएंसी, डिटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड और एरर, एंड थर्ड थिंग इज moral check on employees, high quality information, helps to government, safeguard shareholders interest, and helps to creditors also. Now how auditor ensure that financial statements does not mislead anybody, किसी को वो गलत डायरेक्शन नहीं दे रहा. तो अब क्या करेगा, सबसे पहले 3 पॉइंट एंट्रीज के हैं कि एंट्रीज जो हैं वो उस जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड करी गई हैं, एंट्रीज के ऊपर अकाउंट्स बने हुए हैं. पहले तो अकाउंट्स एंट्रीज के रिलेटेड बनी हुई है. अब जो एंट्रीज है वो सफिशिएंट, उसकी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने डेटर की एंट्री डाली है तो आपके पास सेल इनवॉइस होना चाहिए, तो ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. आपने सेल इनवॉइस के लिए आपने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले रखा हो, ठीक है, यू हैव आस्क्ड एज अ ऑडिटर, आपके पास एविडेंसेस होना चाहिए. एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले लिया आपने ओवर स्टेटमेंट देख लिया बैंक बैलेंस का, या मतलब आपने सब कुछ चेक कर लिया है. थर्ड थिंग कि आपने जो एंट्री है ना कोई भी छूटी नहीं है. जब स्टेटमेंट्स बन रहे थे तो नन ऑफ द एंट्रीज इज ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स.
और जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो क्लियर हैं और अनएम्बिगियस हैं। क्लियर हैं मतलब साफ सुथरे हैं, और वो किसी को मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे, अनएम्बिगियस नहीं है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन कन्फर्ड बाय, एंड फिफ्थ इज कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट्स हैं मतलब वो सही से क्लासिफाइड है, प्रेजेंटेड है एंड डिस्क्लोज्ड है एंड एज पर स्टैंडर्ड्स हैं। एंड थर्ड फिफ्थ लास्ट इज ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज मतलब एक बार फिर से मैं इसको समराइज करती हूँ। हाउ ऑडिटर इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट मिसलीड एनीबडी। तो इसमें क्या क्या होगा कि एंट्रीज जो है, जो अकाउंट्स हैं वो एंट्रीज के डिफरेंस से बनी हुई है, तो अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन विद रेफरेंस टू एंट्रीज। सेकेंड थिंग इज एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर supported by sufficient and appropriate evidences. Entries are supported by sufficient and appropriate evidences. Third thing, none of the entries is omitted in the process of compilation of financial statements, and whatever the statement is conveying true and conveying clear and ambiguous picture, वो true and fair picture दिखा रही है of operational results and assets and liabilities, and जो भी हमारे financial statements है presented disclose ये सब है वो as per standards हैं. These are the things that you needed to write in your answers. नाउ वी टॉक कि ऑडिट जो है, ऑडिट हम क्या दे रहे थे, रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे थे. अब रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे थे, हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे रहे थे. क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कमी होती है ऑडिट में, भी कुछ ना कुछ कमी है. कौन कौन सी कमी, हम उसकी बारे में बात करते हैं. तो ऑडिट रिस्क हम ना पूरा जीरो पे नहीं ला सकते, पर हम ऑडिट रिस्क को कम कर सकते हैं. अपनी चेकिंग बढ़ा के, टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स बढ़ा के हम कम कर सकते हैं, बट हम उसको पूरा कम नहीं कर सकते हैं. तो अब कुछ कुछ मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन है. सबसे पहले है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कोई भी बनाएगा, कौन बनाएगा, मैनेजमेंट बनाएगी. मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज़ करती है. तो जजमेंट बाय मैनेजमेंट, जजमेंट में वो क्या यूज़ करेगी, सब्जेक्टिव डिसीजंस. फॉर एग्जांपल एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीबी यूज़ कर रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट ना, वो क्या यूज़ करना चाहती है. तो सब्जेक्टिव डिसीजन हमारे हिसाब से एसएलएम होना चाहिए. तो दोनों का सेम नहीं हो रहा है. वी कैन मतलब एमसीक्यू के आंसर्स ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, पर आप जो पेपर में लिखते हो, लिख के आते हो, सब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जामिनर और आपका अलग अलग हो सकता है. इसकी वजह से डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब एक्चुअल से और आपने जो वो चीज़ लिखी है मैनेजमेंट, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. तो सबसे पहले इसको याद रखते हैं, जजमेंट बाय मैनेजमेंट. जजमेंट में बाय मैनेजमेंट में दो चीज़ गलती हो सकती है, एक सब्जेक्टिव डिसीजन की वजह से और उसकी वजह से डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी हो सकता है. और इंटरनल कंट्रोल्स की भी तो खुद की लिमिटेशन होती है, जिसकी वजह से वो पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन, रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है. अब आता है ऑडिट प्रोसीजर्स में भी गलती होती है. ऑडिट प्रोसीजर भी एक ऐसा है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन. जो प्रैक्टिकल लिमिटेशन मतलब ऑडिटर तो एक बंदा है, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 बंदे की टीम होगी, 10 बंदे की टीम लेके जाता है तो भी वो पूरा ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर सकता है, तो उसको सैम्पल चेकिंग करनी पड़ेगी. तो इसको हम पढ़ेंगे डज नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंसेस. तो वो अपना ओपिनियन कैसे फॉर्म करता है, बाय टेस्टिंग सैम्पल्स. ठीक है, ये एग्जांपल हो गया प्रैक्टिकल लिमिटेशन का. लीगल लिमिटेशन, मान लो मैनेजमेंट उसने बोला कि मेरे को ये सारी चीज़ें दो, उसने उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी. ज़्यादा से ज़्यादा वो रिक्वेस्ट कर सकता है, रिक्वेस्ट करने के बाद नहीं दी तो वो क्या कर सकता है, उसको रिपोर्ट कर सकता है, अपना ओपिनियन बेकार कर देगा, मॉडिफाई कर देगा. दिस इज़ व्हाट ही कैन डू. अब वो केस तो नहीं कर देगा पुलिस के पास जाके. ठीक है, तो ये लीगल लिमिटेशन हो गई. और एक और पॉइंट लिखना होता है कि मैनेजमेंट में कुछ ऐसे गंदे लोग होते हैं, ऑन डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलेस पीपल होते हैं, जो फ्रॉड को कंसील करते हैं, छुपाते हैं. अब एक आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम. इसके वजह से दो एग्जांपल्स दे रखे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट दिखा दिया ऑडिटर को, आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो हुए ही नहीं थे वो आपने दिखा दिए स्टेटमेंट्स में. अब वो कैसे इतना चेकिंग करेगा. नाउ ऑडिट जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन का नेचर का नहीं होता. ऑडिट बेसिकली हम ऑडिट जाते करने के लिए इज़ अ फ्री माइंड कि हमें सब कुछ ठीक मिलेगा, वी आर गोइंग टू गिव अनमोडिफाइड ओपिनियन. और थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसीजर आप अच्छा सोच के चलते हो, बट बीच में आपको बेकार चीज़ें मिलती है, फिर आप मॉडिफाई करते हो अपना ओपिनियन. बट इन्वेस्टिगेशन में ही आप जाते हो तो आपके पास होता है कि भाई कुछ ना कुछ गलती है, तो यू आर लाइक बहुत आपके पास ना लीगल पावर्स भी होती है, पर इसमें आपके पास लीगल पावर्स नहीं होती हैं. तो ऑडिट इज़ नॉट अलेज्ड इन टू रॉन्ग डूइंग, बट इन्वेस्टिगेशन इज़. तो ऑडिटर के पास लीगल पावर्स नहीं होते हैं, जैसे कि भाई मतलब कि सर्च वारंट टाइप, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ओथ. तो ऑडिट डिफरेंट है. इन्वेस्टिगेशन क्या, क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद अ स्पेशल पर्पस, पर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. यही तो होता है भाई. नाउ टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिटवीन बेनिफिट्स एंड कॉस्ट. अब फॉर एग्जाम्पल आपको 5 साल का ऑडिट का पीरियड मिला है, 2 साल तक आपने बहुत अच्छी एक्सटेंसिव चेकिंग करी, थर्ड ईयर में आपको लगा आपके पास ना थोड़े से इंगेजमेंट डे में कम मेंबर्स है, तो आपने सोचा कि भाई जो हमें पहले इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर रिलाई कर लेते हैं, हमने पहले तो चेकिंग करी है ना. अब मान लो कुछ इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है
और वो इन्फॉर्मेशन ना उतनी बेनिफिट नहीं कर पाएगी आपको। तो यहाँ पे आपको मतलब एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि भाई अब मैं कितनी इसमें और चेकिंग करूँ नहीं करूँगा। तो ये मतलब बेसिकली बहुत सारे जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। एंड फिफ्थ इज़ फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स मान लो अगर आपने बोला कि रीजनेबल अश्योरेंस तो दिया, पर फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई कुछ नया प्रोडक्ट आ गया, आप रीजनेबल अश्योरेंस नहीं दे सकते कि फ्यूचर वो गोइंग कंसर्न करेगा। आपने गोइंग कंसर्न अभी तो आप मैनेजमेंट ने भी गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज़ करा, आपने भी उसको हिट मतलब कि सपोर्ट कर दिया। बट ये भी हो सकता है मार्केट में नया प्रोडक्ट आ जाए, कोविड पैंडेमिक आ जाए, बिजनेस बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एंटिटी को बहुत अच्छे से एडवर्स कर सकता है। और बिजनेस में सीज, मार्केट कंडीशन में चेंज हो सकता है, कोई नया बिजनेस मॉडल आ जाए, ठीक है। अब ऑडिटर जो होता है वो गारंटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? फ्यूचर में कुछ भी चेंज हो सकता है और हमें मैनेजमेंट के इफेक्टिवली मतलब एफिशिएंटली मतलब इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट के बारे में नहीं पता होता है। अब ऑडिट का काम क्या होता है ये समझो। ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस करेंगे, देन वी फॉर्म अ कंक्लूजन, देन वी फॉर्म ओपिनियन। तो दीज फोर आपने ऑडिट एविडेंसेस के बाद कंक्लूजन फॉर्म करते होगे। अब ये कंक्लूजन हमारा है, अब इस बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन चेंज करूँ नहीं करूँ, ये ऐसे के हिसाब से होता है। नाउ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब होता है फॉर एग्जांपल आपको थ्रू आउट ऑडिट आपको एक क्वालिटी इनहेरिट करनी पड़ती है, आपको ध्यान लगाना पड़ता है कि कोई गलती ना हो। तो उसको हमने समझाया कि एक एटीट्यूड बनाना पड़ता है ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू सिचुएशन, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस विच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स। पॉसिबल जो मतलब हाँ भाई गलती हो सकती है ड्यू टू एरर ऑफ ऑडिट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। आपको ध्यान से सारे ऑडिट एविडेंसेस को चेक करना पड़ेगा। अब देखो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल एक ऑडिट एविडेंस दूसरा ऑडिट एविडेंस से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्रॉड पता चल जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने कुछ ना कुछ मतलब मेरे से कंसील करने की कोशिश करी है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को मतलब वो नहीं रिलायबल नहीं मिल रही है, आपको रिलायबिलिटी को शो नहीं कर रही है, तो भी आपको ऑडिट एज ऑडिट एविडेंस हो गया। आपको ऐसे कंडीशंस मिल रहे हैं जिसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है। सर्कमस्टांसेस दैट सजेस्ट नीड फॉर एग्जांपल आपको इन्वेंट्री चेकिंग करनी थी, 4 प्रोसीजर के बाद स्टिल यू आर फीलिंग कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आपको ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। तो ठीक है, दीज आर द प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें क्यों करना चाहिए, ये हमें क्यों, किस रिस्क से? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। तो मतलब जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है हम उसको ऐसे भी हटा ना दो। ओवरलुकिंग, over generalizing when drawing conclusion from audit using inappropriate assumptions in determining nature, timing and extent of audit procedures and evaluating the results thereof. Now engagement क्या होता है? engagement मतलब for example there is a boy, there is a girl, they do engagement, now they are actively participating in each other's life, दिस इज टू बी कॉल्ड एज एंगेजमेंट। सेम ऑडिट एक एंटिटी है, ऑडिटर को बुलाते हैं, ऑडिटर एंगेज होगा, उनको चेक करेगा, उनके एंटिटी को चेक करेगा, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं है वो चेक करेगा। तो ही इज एंगेजिंग इन देयर वर्क। नाउ एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनता है ऑडिटर के बीच में और क्लाइंट के बीच में, वो क्या करेगा? ऑडिटिंग सर्विसेज देगा, ठीक है। अब अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है? बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस, हम चेक करके बताएंगे हाँ भाई ठीक है। ये क्या हो गया? अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब जरूरी थोड़ी ना ऑडिट होगा, रिव्यू भी हो सकता है, अश्योरेंस बहुत सारे इंगेजमेंट होते हैं। तो इसमें क्या करता है? प्रैक्टिशनर मतलब ऑडिटर एक्सप्रेसेस द कंक्लूजन टू एनहेंस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। तो किसका करेगा? बेसिकली शेयर होल्डर्स का करेगा। अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है? मैनेजमेंट होती है। अबाउट आउटकम ऑफ इवेल्युएशन और मेजरमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस द कंक्लूजन टू अचीव डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस of intended users other than responsible party about outcome of evaluation or measurement of subject matter against criteria। subject matter क्या हमारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्राइटेरिया क्या? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अब हमारा जो ऑडिटर है वो क्या करेगा? ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। अब 3 बंदे एश्योरेंस एंगेजमेंट के, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर शेयर होल्डर्स, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिशनर इज ऑडिटर। तो क्या करेगा? प्रैक्टिशनर क्या करेगा? अश्योरेंस, वी आर प्रोवाइडिंग यू अश्योरेंस कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, चीज़ ठीक है तो अनक्वालिफाइड अनमोडिफाइड ओपिनियन, ठीक नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन समझ में है। अब टीम प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर। प्रैक्टिशनर मतलब रिव्यू का काम भी कर सकता है, ठीक है। अगर मेरे को बैंक से लोन लेना है तो मैं ऑडिट ना करा के मैं रिव्यू कराऊंगी। ब्रॉडर देन ऑडिटर, ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रैक्टिशनर भाई मतलब प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी करता है। नाउ रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या होती है? जो सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करती है, लाइक मैनेजमेंट।
इंटरनेट यूजर्स जो उस चीज़ को पढ़ेंगे और एश्योरेंस लेंगे कि हाँ ठीक है, उनकी बात पे रिलाई करेंगे, मतलब प्रैक्टिशनर की बात पे। सब्जेक्ट मैटर मैंने बता दिया। नाउ ऑडिट वर्सेस रिव्यू। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है और रिव्यू में हमें क्या मिलता है? लिमिटेड एश्योरेंस मिलता है। ऑडिट में हम एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स करते हैं, पर रिव्यू में हम क्या करते हैं? कौन से प्रोसीजर? फ्यूअर प्रोसीजर्स करते हैं। और ऑडिट एंड रिव्यू वैसे दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड ही होता है। रीजनेबल एश्योरेंस में हमें हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलता है और रीजनेबल एश्योरेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, इससे आपको रीजनेबल कंक्लूजन मिलता है, एग्जाम्पल ऑडिट इंगेजमेंट हो गया। पर लिमिटेड एश्योरेंस में आपको क्या मिलता है? लोअर लेवल, कम एश्योरेंस मिलेगा और आपको कम प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे और आपको लिमिटेड कंक्लूजन्स एंड ये रिव्यू एग्जाम्पल। नाउ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या कहता है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहता है कि हम ना आगे फ्यूचर का बनाएंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने मतलब अजम्पशंस के ऊपर, मैनेजमेंट के अजम्पशंस के ऊपर। तो बेसिकली हम इसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, ये नहीं हम इस पर वो देते हैं, एश्योरेंस देते हैं। हम देते हैं कि मैनेजमेंट के अजम्पशन ठीक है या नहीं, उस पर वो देते हैं, एश्योरेंस देते हैं। तो अजम्पशन अबाउट इवेंट्स मे अकर इन फ्यूचर एंड पॉसिबल इफ एक्शंस बाय एंटिटी कैन बी इन फॉर्म ऑफ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। नाउ हमें क्या पता है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस क्यों गैदर करने पड़ते हैं? हम बताते हैं कि मैनेजमेंट के एजम्पशन जो है वो सही से मतलब अनरीजनेबल तो नहीं है, मतलब नॉट अनरीजनेबल, मतलब रीजनेबल तो है, हमें ये बताना होता है। बट आपकी बुक में लैंग्वेज है नॉट अनरीजनेबल, मतलब नॉट अनरीजनेबल, नॉट और अन माइनस माइनस पॉजिटिव, मतलब रीजनेबल तो है, ये बताना होता है। तो PFI मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये अजम्पशंस के बेसिस पे बनाए जाते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसा चाहते हैं, हमने अगर इतना इतना इन्वेस्ट किया, अगर बैंक हमें प्रोवाइड कर देती है लोन, तो हमारा इतना इतना ग्रो करेगा एंड देन वी आर एबल टू पे ऑफ देम लोन। ये ही चाहते हैं, बनाने का पर्पज़ होता है कि हमने जो अजम्पशन लिया वो ठीक है। ओके, तो इसमें लाइन क्या होते हैं? तो ऑडिटर इज नॉट इन पोजिशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज टू वेदर रिजल्ट शोन इन PFI विल बी अचीव्ड और नॉट। Therefore, practitioners provide a report assuring that nothing has came to practitioner attention to suggest that these assumptions don't provide a reasonable basis for projection. These are the lines. A financial statement को audit कौन करता है? Auditor करता है, reviewer करता है, examination. Now ये बहुत इजी टॉपिक है, वो तो आप घर पे कर लोगे। नाउ essay 210 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ 17 मिनट्स एंड 26 सेकेंड्स में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था।